Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer none other than Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji is here to help all the viewers understand what could be the solutions along with the remedies, because today is going to be dedicated to the emails which you've all sent us. Since we can only take a few of them, let's find out who sent us the first email for today. और Premji पहली email जो आई है, this is a concerned father who wants to know about their child. The child's name is D.A. Date of birth is August 22nd, 1999. Time of birth is 10:48 in the evening. Place of birth is New Delhi. They want the guidance in understanding that, about the son. He has gone through college for a while, but then he came back after quitting everything. Now he wants to join the family business, but as the parent, they want to know why all of a sudden did he quit his college, and is the future bright for him in doing the business with the family, or better for him to continue to study? He wants your help. देखिए मिस्टर डी, अगर आप 22 अगस्त 99 इनका 10:48 PM न्यू दिल्ली का बर्थ है, इनका लिब्रा असेंडेंट है और इनका जो मून साइन है सेजिटेरियस है, तुला लगन है और इनकी जो है धनु राशि है जिसके ऊपर 7.5 चल रही थी 2014 से जो कि 2022 तक रहने वाली है। तो शनि जो है इनकी कुंडली में रिलेशनशिप में 7th हाउस में जुपिटर के साथ है। तो जुपिटर जो एजुकेशन का लॉर्ड है तो सैटर्न उसको ख़राब करता है। तो 7.5 की वजह से आदमी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है अपने रिलेशनशिप्स को लेके और लोगों से उसकी जो ट्यूनिंग नहीं बैठती, तो इस तरह से वो एक तरह से गिव अप करना शुरू कर देता है। दशा शुक्र की चल रही है। अब शुक्र में केतु है जो लास्ट स्टेज है शुक्र दशा का। आगे सूरज आने वाला है। सूरज जो है इनकी कुंडली में इनके इनकम के एरिया में है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है। सन जो है बर्न करता है वीनस को, बट एट द सेम टाइम इट्स इन द इनकम एरिया। तो इट मीन्स सन मीन्स आप अपनी फैमिली बिजनेस के साथ जाके काम करोगे। तो इसलिए अगर ये अपनी फैमिली के साथ काम करते हैं तो इनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा। बट एट द सेम टाइम इनको जो 7.5 चल रही है, जैसे ही वो ख़त्म होगी तो ये फिर अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए आगे भी बढ़ेंगे। So then Premji, in the meantime, because the parents are so concerned, what is it you recommend for them to do for him? देखिए इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए 1 कैरेट का इनकी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, वाइट मेटल के बीच में। फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहनाएं। मस्टर्ड ऑयल में इनकी फेस की रिफ्लेक्शन दिखानी चाहिए। उसको किसी स्टील बाउल में डाल दें तो उसमें इनका चेहरा दिखा के उसमें एक लौंग डाल के उसको बाहर गिरा दें, जिससे जो शनि छाया जो है उनकी वो भी हट जाएगी। और किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में इनको जो है डोनेशन देना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है एक फीमेल प्लैनेट है। तो वहाँ हेल्प करने से ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे। Thank you, Premji. So like Premji is advising you that it's okay if your son has left his studies and come back to doing family business, because that is what he will continue to do in the future. It is beneficial for you to have him and it is good for him, but he will go back as soon as the Sadesati is over to his studies. Please do the remedies that Premji has told you and I shall see that he is back on track. और प्रेम जी अगली मिल जाई है, दिस फ्रॉम श्वेता एस। डेट ऑफ बर्थ इज March 17th, 1978. टाइम ऑफ बर्थ इज 11:03 in the morning. Place of birth is Bihar. She says that she is in a marriage since the last 7 years. They have done 2 IVFs, but they have both failed. They are very concerned whether they will be blessed with a child and want your help and solutions. देखिए श्वेता सिंह, अगर आप 17 मार्च 1978 इनका 11:03 AM भागलपुर बिहार का बर्थ है। इनका मिथुन लगन है जिसमें इनकी मिथुन राशि है। जेमिनाई असेंडेंट है, मून साइन भी जेमिनाई है। जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी होता है। मरकरी जो है इनकी कुंडली में सन, वीनस और केतु के साथ 10th हाउस में है, जो करियर को डिफाइन करता है। कुंडली में इनके काल सर्प दोष है। आई एम श्योर उनकी इन्होंने पूजा कराई होगी, तो अगर नहीं कराई तो जिस दिन मंडे के अमावस है तो उस दिन इनको वो करानी चाहिए जी। सूरज होता है संतान का कारक। शनि दशा चल रही है इनको 2010 से। अब शनि सूरज में जाएगा इस साल अगस्त के अंदर। तो जैसे ही सन सैटर्न में जाएगा तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनेगा जिसमें जो ये
अपनी संतान के लिए जो अचीव करना चाहते हैं तो इनका वो पूरा हो जाएगा। तो आफ्टर दिस ईयर अगस्त टाइमिंग इज़ वेरी वेरी ग्रेट, जो कि नेक्स्ट ईयर अगस्त तक रहने वाली है। तो इस बीच में इनका जो है, जो भी ये बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इनकी कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। So any remedies or solutions to help her with the process? देखिए, इनको एक एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी लिटिल फिंगर में। उसको बुधवार के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, तो जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड जो है इनका स्ट्रांग हो जाएगा, जो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। और इनको दुर्गा चालीसा करना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम वेंसडे, एंड उसको रोज करें। और सूर्य देव को जल भी चढ़ाएं, कॉपर वेसल में पानी भर लें सैटरडे रात को, और संडे के दिन उसमें अपना चेहरा देख के और उसमें शुगर डाल के सूर्य नमस्कार करें, तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। Thank you, Premji. So Premji is saying, do not give hope. Try one more time or maybe 2 more times, because starting August till next August, you have the blessing of God to be blessed with a baby. Continue doing the remedies that Premji has told you. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the weekly predictions for the zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. So Premji, what about Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, जो आपका हार्ड वर्क है काफ़ी बेनिफिट देगा पार्टनरशिप और जॉइंट वर्क के अंदर, जिससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। किसी तरह की भी आर्गूमेंट्स में मत जाइएगा और अपने टेम्पर को लूज़ मत करिएगा। जिन लोगों की हेल्थ ख़राब चल रही थी वो इस वीक के अंदर इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, स्पेशली एंड ऑफ द वीक के अंदर। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, हार्ड वर्क चाहिए। जो भी आप किसी तरह के भी डिसीजन लेना चाहते हैं इस वीक के अंदर, एंड ऑफ द वीक में आपका जो पैसा आपने किसी को लोन दिया था वो रिकवर हो जाएगा। जो भी मनी आपने किसी डील में इन्वेस्ट करी है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको कोई सक्सेस नहीं मिल पाएगा। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, काम की सिचुएशन पहले से बेटर हो जानी है। आप अपना समय निकालेंगे ताकि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। हार्ड वर्क जो है आपको अच्छे प्रॉफिट दे के जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी इस वीक के अंदर। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, आप ड्रॉन टुवर्ड्स रहेंगे अपने काम के ऊपर, बट अपनी फैमिली को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। और आप अपने जितने भी आपके टास्क हैं, आप उनको इनकम्प्लीट जो जॉब्स हैं उनको पूरा कर पाएंगे। फाइनेंशियल जो पोजीशन है थोड़ी सी अनस्टेबल रहेगी इस वीक के अंदर आपकी। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ आज शो में है टू हेल्प अस ऑल अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस और द रेमेडीज दैट यू आर लुकिंग फॉर, बिकॉज यू सेंट अस ईमेल्स। लेट्स फाइंड आउट हु सेंट अस अ नेक्स्ट ईमेल। और प्रेम जी, अगली ईमेल जो आई है, this is from Gagandeep Singh. Date of birth is Jan 20th, 1986. Time of birth is 1:30 in the evening. Place of birth is Bhatinda, Punjab. He says he wants to know about the future because he is having major problems with his wife. They don't know what to do, whether they should get a divorce or he should continue in the marriage. They plan for a baby as well and it's not happening. They don't even have a good relationship with each other. So he wants your help to understand, is there a solution for this or no? देखिए गगनदीप सिंह, अगर आप जनवरी 20, 1986, इनका 1:30 PM बठिंडा इंडिया का बर्थ है। इनका टॉरस असेंडेंट है, मून साइन भी टॉरस है, वृषभ लगन है और वृषभ राशि है, जिसका लॉर्ड शुक्र होता है, जो इनकी कुंडली में गुरु और सूरज के साथ इनके भाग्य स्थान में है। दशा इनको राहु की चल रही है कुंडली के अंदर। राहु जो है 12th हाउस में है और जो कि 2024 तक रहने वाली है। और 7th हाउस होता है इनका मैरिज का, वहाँ पे सैटर्न बैठा मार्स के अंदर। शनि जब मंगल की राशि में बैठ जाए तो वहाँ पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। इट मीन्स टू डिफरेंट पर्सनालिटीज़ आर मैरिड टू ईच अदर, राइट। तो जिसकी वजह से हार्मनी नहीं रहती रिलेशनशिप के अंदर। छोटी छोटी चीज़ों में बेसिकली बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। बट वो इनकी शादी किसी के भी साथ होती तो इनको सेम ही प्रॉब्लम आता। सो ये नहीं कि ही कैन ब्लेम हिज पार्टनर कि भी उनकी वजह से है ये। तो इसीलिए अगर डिवोर्स इनका सोल्यूशन नहीं है, इनको इस चीज़ को रेक्टिफाई करना चाहिए। राहु दशा चल रही है इनको, राहु में शुक्र का ट्रांजिशन चल रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव है, जो बच्चे के लिए फैमिली एक्सटेंशन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, जो कि 2021 जून तक रहने वाला है। तो टाइमिंग फॉर हैविंग ए चाइल्ड इज़ वेरी वेरी ग्रेट, बट रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ द सैटर्न की जो पोजीशनिंग है उसकी वजह से इनको परेशानी रहती है। So any remedies, Premji, that he can do or his and his wife can both do together? देखिए, एक इनको डायमंड पहन के रखना चाहिए क्योंकि शुक्र लॉर्ड है। 1 कैरेट का प्रिंसेस कट उसको स्क्वायर जो हो उसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में फ्राइडे के दिन
वाइट मेटल के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। Right. शनि देव को शांत करने के लिए अपने पार्टनर से ये फिर से टेंपल में जाके मैरिज करे, ताकि शनि देव का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव हो जाए। और इनको जो है थर्सडे के दिन फास्ट भी करना चाहिए या वेजिटेरियन रहे, और किसी भी रिलीजियस प्लेस में, जैसे किसी भी धर्म स्थान में, ये कुछ ना कुछ डोनेट करते रहे एवरी ईयर, साल में 2-3 बार थर्सडे के दिन, जिससे इनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी। Thank you, Prem ji. So Prem ji is advising you that getting a divorce is not a solution for you, because whoever you will remarry will always have a problem as far as your married life is concerned, because your planets are aligned like that. You need to do the remedies that Prem ji has told you, but of course marry your partner one more time and you shall see changes happening for you for the better. और अगली email जो आई है, Prem ji, this is from Kajal Bhavesh. Her date of birth is Jan 18, 1981. Time of birth is 8:30 in the evening. Place of birth is Nairobi, Kenya. Has been widowed for the last 7 years. Has no luck in love or compassion. No partnership. No wanting to find whether she can have a personal life, have another marriage at all. Though she has a 9-year-old son, so will she be able to provide the best, because she wants to give him obviously the best as a mother, but she wants to know what does the future hold for her. देखिए काजल भावेश, अगर आप 18 जनवरी 81 8:30 बजे रात का इनका नैरोबी कीनिया का बर्थ है। जी। इनका सिंह लगन है, जिसमें इनकी मिथुन राशि है। लियो असेंडेंट है, मून साइन जमिनाई है, नाम भी राशि के ऊपर ही है। लियो का लॉर्ड होता है सूरज, वो मंगल और केतु के साथ इनके 6th हाउस में है। शनि दशा चल रही है 2004 से। सैटर्न जो है सन का एनिमी होता है, तो बेसिकली एनिमी प्लैनेट की जब दशा चलती है तो चीज़ों को वो ख़राब करता है। 2014 में शुक्र शनि जो है सूरज में गया, इनकी जो इनकी पर्सनल लाइफ को डैमेज कर गया, सोलर एक्लिप्स कॉज कर गया इनकी लाइफ के अंदर। अभी शनि दशा में राहु चल रहा है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होता। 2017 से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में, मैरिज में जाने के लिए, बिकॉज राहु भी सन को ख़राब करता है और शनि भी करता है। तो लेकिन इस साल जो शनि जो है 26 जुलाई के बाद जुपिटर में चला जाएगा। गुरु जो है फीमेल में मेल प्लैनेट होता है, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड द चाइल्ड। तो इस साल 26 जुलाई से लेके जो 2023 जून तक का जो इनका पीरियड है, वो इनकी लाइफ का बहुत पॉजिटिव टाइम है, जिसमें इनकी शादी और इनकी फैमिली भी आगे बढ़ जाएगी। सो शी जस्ट नीड टू वेट टिल द जुलाई एंड, उसके बाद जो इनका समय जो है काफ़ी पॉजिटिव है। So Prem ji, any remedies or solutions for her that you recommend? देखिए, इनको एक रूबी पहन के रखना चाहिए, 5 to 6 कैरेट का रिंग फिंगर में। उसको संडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, और उसको लाइफ लॉन्ग पहन के रखना। क्योंकि सूरज इनकी कुंडली का लॉर्ड है और सन आइज होती हैं, तो इनको ब्लाइंड लोगों को हेल्प करना चाहिए। साल में किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आई सर्जरीज वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे इनको डोनेशन देना चाहिए। तो उससे ओवरऑल इनकी लाइफ में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। Thank you, Prem ji. So like Prem ji is saying that he does see a marriage and a healthy relationship for you in the future. You need to stay positive and do the remedies that he has told you, because you are going to be blessed with a beautiful married life. Stay positive and wishing you all the very best. और दोस्तों, let's find out the predictions for the rest of the zodiac signs. So Prem ji, what about Leos for this week? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो एक्सपेंसेस हैं आपके इंक्रीज हो जाएंगे। परिवार में किसी की अनसडनली डेथ भी हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इंक्रीमेंट सैलरी में अच्छा प्रॉफिट आ सकता है इस वीक के अंदर, और थोड़े सॉलिड स्टेप्स लेंगे आप अपने आप को, अपने पैसे को कमाने के लिए इस वीक के अंदर। Virgo? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीक है। सक्सेस मिलेगा जो भी आप काम करेंगे। आप प्राइड लोगों से मिलेंगे, जिससे आपका जो सोशल लाइफ और आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो इन्हेंस हो जाएगा। थोड़ा केयरफुल रहिएगा इन्वेस्टमेंट्स को लेके, 2 बार सोच के किसी तरह का भी एक्शन लीजिएगा आप। Libra? लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर एक्सपेंसेस जो है माउंट हो जाएंगे बिगिनिंग ऑफ द वीक के अंदर। ओल्ड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है उसमें आप काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे। कहीं कुछ लोगों को नई जॉब्स लॉन्च होंगी, और पेंडिंग जॉब्स भी आपकी जो है वो पूरी हो जाएंगी। फैमिली जो है आपको काफ़ी इनकरेज और आपको अप्रिशिएट करेगी। And Scorpio? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, हार्ड वीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स आपकी काम और आपकी पर्सनल लाइफ में आएंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगी अपने करियर को लेके, थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। प्लान जो आपने पहले से बनाए थे वो भी शायद पूरे नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस वीक के अंदर।
थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रोडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी ने जैसे बताया है दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्लैनेट्स एंड ऑन योर चार्ट, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट होल्ड्स द सॉल्यूशंस एंड द रेमेडीज फॉर द नेक्स्ट पर्सन हु सेंड अस द ईमेल। और प्रेम जी अगली ईमेल चाहिए। This is from Sharmila Chand. Her date of birth is June 22nd, 1973. Time of birth is 4:10 in the morning. Place of birth is Suva, Fiji. She is requesting for a general reading to understand what does her future hold for her as for her health and finances. देखिए शर्मिला चांद, अगर आप 22 जून 73, इनका 4:10 सुबह फीजी आइलैंड का जन्म है। इनका धनु लगन है जिसमें इनकी सिंह राशि है, सजिटेरियस असेंडेंट है, मून साइन इनका लियो है। सजिटेरियस का लॉर्ड होता है जुपिटर, वो राहु के साथ और शुक्र के साथ बैठा है, तो कुंडली में गुरु राहु चंडाल योग है। तो राहु दशा चल रही है 2014 से, जो कि 2032 तक रहने वाली है। तो राहु जो है जुपिटर को ख़राब करता है, जो करियर में, रिलेशनशिप में, ओवरऑल हेल्थ में, ब्रीदिंग, स्टमक, लोअर बैक में भी परेशानियां क्रिएट करता है। तो शी इज़ गोइंग इनटू दैट ट्रांजिशन राइट नाउ, और इसीलिए ये जो दशा जो है राहु की, ये इनको परेशान करेगी। और प्लस गुरु राहु चंडाल योग भी है, तो इनकी जर्नी जो है 2032 तक इतनी बढ़िया नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो इनकी करंट ट्रांजिशन चल रहा है। So Prem ji, what would you recommend for her to do to make it an easier life for her? देखिए इनको एक येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी इंडेक्स फिंगर में। उसको थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो इनका जो लग्नेश लॉर्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और राहु को शांत करने के लिए इनको जो है होमलेस लोगों को खाना खिलाना चाहिए साल में 2 बार, थर्सडे के दिन। यानी हर मंथ भी वो कर सकती हैं किसी भी शेल्टर में, या किसी भी होमलेस को अगर वो किसी को खाना खिला दें तो बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। और दूसरा, इनको जो है गंगा स्नान करना चाहिए। अगर घर में गंगा जल ले आए तो जब नहाने से पहले फ्यू ड्रॉप्स शी पुट इट ऑन हर फोरहेड, तो कहते हैं राहु को शांत करने से अगर गंगा स्नान करें तो उससे भी काफ़ी बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाते हैं। Thank you, Prem ji. So Prem ji is advising you that you need to do these remedies because your time now for the next 10-15 years is going to be not as great or as something that you'd be happy with. But if you do these remedies, you shall see changes happening for you and things will be easier for you. और अगली email चाहिए। Prem ji, this is from Salim. His date of birth is Jan 10th, 1986. Time of birth is 5 in the morning. Place of birth is Gujarat, India. He follows your show, watches it every weekend. He wants to know what is his Rashi and what is it that he needs to do because he is not finding success in his work. He's working very hard but he's not getting the money that he needs and wants to be having a happy life. So, and also wants to know what stones should he wear. देखिए सलीम, अगर आप जनवरी 10, 1986 5 बजे इनका सुबह का गुजरात का बर्थ है। इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है, वृश्चिक लगन है और जिसमें धनु राशि है। वृश्चिक लगन का लॉर्ड होता है मंगल, राशि का लॉर्ड है गुरु, जो कि दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। और मंगल जो है कुंडली में अगर बिजनेस में जाते हैं तो फूड, बेवरेजेस, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा होता है। एजुकेशन वाइज ये आपको फाइनेंस में, सर्जरी में, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा करियर देके जाता है। तो इनको इस चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। दशा भी इनको जो है इस वक्त जो चल रही है कुंडली के अंदर, वो मंगल की ही चल रही है 2014 से लेके जो कि 2021 तक रहने वाली है, नेक्स्ट ईयर तक। तो मार्स फेवरेबल टाइम है इनका, और तो दशा वाइज भी इनकी टाइमिंग अच्छी है। और आगे इनको राहु लगने वाला है 19 ईयर्स के लिए। राहु भी मंगल का मित्र और मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो ही इज़ गोना डू वेरी वेरी वेल टिल 2039 एक्चुअली। Wow, so then any remedies or solutions for him? देखिए इनको जो है एक कोरल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का। अपनी राइट हैंड की इनको रिंग फिंगर में गोल्ड के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में ट्यूसडे के दिन पहने, तो उससे जो है लग्नेश लॉर्ड इनका स्ट्रांग हो जाएगा। मार्स होता है फूड, तो कहते हैं जो स्वीट्स हैं, जो मीठा खाना है, वो इनको जो है डोनेट करना चाहिए किसी भी शेल्टर में जाके, तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। और मंगल जो है बेसिकली इनकी कुंडली में जो 12th हाउस में है, तो 12वां स्थान जो है बेसिकली बाहर से भी जुड़ा हुआ है, विदेश से भी जुड़ा हुआ है। तो अब ये रहते हैं यहाँ पे, तो इनको ओवरसीज़ में भी जो लोगों को फूड की डोनेशन देनी चाहिए, तो जिससे इनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट आएगा। जी, Thank you, Prem ji. So, like Prem ji is advising you that time and your chart is very, very good for you. You will be very successful in what you do, whether it's finances or even health.
You need to do the remedies that Prem ji has told you and stay positive. और दोस्तों वक्त आ गया for us to talk about the rest of the zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Prem ji, what about Sagittarius? Sagittarius यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए आफ्टर लॉट ऑफ हर्डल्स के बाद जितने भी आपके जो टारगेट्स हैं उसको आप पूरा कर पाएंगे। न्यू सोर्स ऑफ इनकम जो है आपकी बढ़ेगी जिससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा और आप स्पेंड करेंगे अपने पैसे को लग्जरी चीज़ों के ऊपर और कुछ लोगों को नई जॉब भी ऑफर हो जाएगी इस वीक के अंदर। Capricorn? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए रिलेशनशिप को लेके आपको प्रॉब्लम रहेगी बट आप किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर पाएंगे इस वीक के अंदर। एंड अपनी एंगर को थोड़ा चेक करके रखिएगा, किसी से भी बिटर तरीके से बात मत करिएगा और आपका पैसे में भी नुकसान हो सकता है इस वीक के अंदर। Aquarius? इक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर सक्सेस मिलेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे काफ़ी लंबे समय के बाद। आप काफ़ी अपबीट और हैप्पी रहेंगे मनी इन फ्लो को लेके। होम और जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं वो भी अट्रैक्ट करेंगे आपकी अटेंशन को। आप पैसे को मेंटेन करके रखेंगे अपनी वेल्थ और प्रॉपर्टी के ऊपर। And Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा, किसी को आप यूज़ मत होने दीजिएगा और किसी के ऊपर रिलाय मत करिएगा इस वीक के अंदर मनी मैटर्स को लेके और बिना किसी सोच समझ के आप इन्वेस्ट मत करिएगा, नहीं तो आपको अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी। Thank you, Prem ji. You came to the show and gave such amazing guidance and solutions to all the viewers. और दोस्तों अगर आपको लगता है that you need Prem ji's remedies and guidance, please email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Prem ji saying namaste. See you next week.